Welcome back to Biology on Earth. We are discussing GPCR, which are called G protein coupled receptor. So, G protein coupled receptor, it also help in vision. So, there is the mechanism of vision, that how we are able to visualize different type of objects, and our eyes are sensitive to light. First of all, our eyes has retina on which light fall. So retina has different type of cells, the cone cells, or we can say the photoreceptor cells, which are called the cone cells, rod cells, and different type of bipolar and ganglion cells. So here is the basic structure of photoreceptor cell. It contains three type of cells. First is called here the rod cell, or similarly some cone cells are also present. So here rod cone cells are present like this, horizontally they are present. And at the end of this rod and cone cells, there is the presence of bipolar neurons. These are the specialized type of neurons which are called bipolar neurons. And bipolar neurons at their terminal, there is the presence of third cell which is called ganglion cell. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही रेटिना पे लाइट पड़ती है, मीन्स हमारी आईज में लाइट पड़ती है, तो इसको परसीव करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। तो सबसे पहले रॉड सेल्स में लाइट जाएगी, ये जो है ये इंफॉर्मेशन मींस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से बाइपोलर सेल्स में जाएगी, इनसे गैंग्लियंस में जाएगी, और गैंग्लियंस के साथ आगे ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं जो कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं। जो भी हमने ऑब्जेक्ट देखा है उसी हिसाब से रेटिना में इस तरीके से इमेज बनती है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ vision and how GPCR they involve in this mechanism. So first of all, these are the rod cells and they contain specialized photosensitive pigment which is called rhodopsin. So here is the mechanism. So these are the rod cells. यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रोड सेल है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, इनमें डिफरेंट जो है रिसेप्टर्स होते हैं विच आर कॉल्ड रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है दे आर फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर एंड इट इज द जीपीसीआर, दैट इज डी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, to which G protein is coupled and help in their action. So these are called the G protein coupled receptors. So rhodopsin is a type of GPCR receptor. Similarly, it have 7 alpha helical chains like this, as we have already discussed about G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो 7 चेन्स होती हैं अल्फा हेलिकल चेन्स, जो कि इस तरीके से इंटेग्रली मेम्ब्रेन को जो है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, ये मेम्ब्रेन को इस तरीके से इम्बैड करता है। तो इसके साथ यहाँ पे जी प्रोटीन एक लगा हुआ है, और जो रोडोप्सिन का स्पेशलाइज्ड जी प्रोटीन है इट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसिन। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लाइट रोडोप्सिन पे पड़ती है तो रोडोप्सिन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ क्या होगा कि रोडोप्सिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी, और ये जो रोडोप्सिन है ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा। Transducin is a G protein. As we have already discussed multiple times that G protein has 3 subunits, alpha, beta and gamma subunit. So same is with the transducin. So once light activate rhodopsin help in activation of transducin. So this G protein, that is transducin, is activated when its alpha subunit, which is called the transducin alpha, it become bound to GTP. So this is the activated alpha subunit of transducin. So alpha subunit become dissociate from this beta gamma complex and slide around the membrane, and it finally activate another protein which is called PD, phosphodiesterase. Phosphodiesterase, as we have already discussed about this protein, it help in conversion of cyclic AMP into AMP or cyclic ZMP into 5-GMP. So in this case, it converts cyclic ZMP into GMP. So level of cyclic ZMP decrease inside the cytosol by the action of light, and the membrane of rod cells or cone cells, they contain a specialized channel which is called cyclic GMP gated sodium channel. So when here cyclic GMP is bounded to this channel will remain in open state. So there is free movement of sodium ion and calcium ion inside the cell. But once here cyclic GMP level is decreased inside the cell, so it is not able to bind to this
channel. So that's why this channel remain closed, and once this channel remain closed, there is no influx of sodium and calcium inside the cell, and this result in hyperpolarization of rod cells. हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो जैसे हम बहुत सारे सेल्स डिस्कस करते हैं, न्यूरॉन्स में क्या होता है, जब नर्व इम्पल्स आती है तो डीपोलराइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। जैसे ही सिग्नल आएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो जो मेम्ब्रेन है रोड एंड कोन सेल्स की, ये यहाँ पे हाइपरपोलराइज हो जाएगी। सो ये जो हाइपरपोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि रोड सेल्स दे डू नॉट सेंड ग्लूटामेट। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ पे लाइट नहीं प्रेजेंट होती, तो जो रोड सेल्स हैं ये ग्लूटामेट, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको सेंड करते हैं बाइपोलर सेल्स में। सो बाइपोलर सेल्स जो हैं ये आगे अपनी जो नर्व इम्पल्स है इसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते, तो ब्रेन तक कोई सिग्नल नहीं जाता। जब लाइट एब्सेंट होगी तो ब्रेन में कोई सिग्नल नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लाइट आ जाएगी तो जो रोडोप्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगी। इससे साइक्लिक जीएमपी का लेवल जो साइटोसोल में डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम और कैल्शियम का लेवल भी साइटोसोल में डिक्रीज हो जाएगा, और इस डिक्रीज लेवल से क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है ये हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी, और हाइपरपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ पे ग्लूटामेट को रिलीज नहीं कर पाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है कि ग्लूटामेट जो है इसका सेक्रेशन नहीं होगा। अगर सेक्रेशन नहीं होगा तो जो यहाँ पे बाइपोलर सेल्स की इनहिबिशन है ये भी खत्म हो जाएगी। तो बाइपोलर सेल्स जो हैं, जो लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई है इसको ट्रांसमिट करेंगे आगे गैंग्लियंस तक। जो गैंग्लियंस हैं इनके साथ जो ऑप्टिक नर्व है, इनके एक्सोन्स लगे हुए होते हैं, तो इनसे जो इंफॉर्मेशन है ये ऑप्टिक नर्व्स में जाती है, और ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल देती है। तो इस तरीके से जो भी हम देखते हैं लाइट की प्रेजेंस में, वो उसकी इमेज हमारी आईज पे बनती है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ये विजन का मैकेनिज्म है इसको रेगुलेट करते हैं जीपीसीआर, विच आर कॉल्ड द रोडोप्सिन टाइप ऑफ रिसेप्टर हियर। सो अब हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनेशन है इस जीपीसीआर का, या जो विजुअल रिसेप्टर है रोडोप्सिन है, इसका टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो दो तरीकों से टर्मिनेशन होता है। सो फर्स्ट इज कॉल्ड द डीसेंसिटाइजेशन। सो यहाँ पे जो क्या होता है कि जो रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज फॉस्फोराइलेट करता है सी टर्मिनल ऑफ एक्टिवेटेड रोडोप्सिन। मींस कुछ ऐसे काइनेज होते हैं जो कि यहाँ पे जो सी टर्मिनल है रोडोप्सिन का, रोडोप्सिन क्या है, एक जीपीसीआर है जिसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और जो इसका साइटोसोलिक टर्मिनल है, ये यहाँ पे साइटोसोलिक टर्मिनल इस तरीके से होता है, ये साइटोसोल की तरफ। तो यहाँ पे साइटोसोलिक जो टर्मिनल है इसकी फॉस्फोराइलेशन करते हैं ये वाले प्रोटीन विच आर कॉल्ड दी स्पेसिफिक काइनेज, विच आर कॉल्ड दी रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो क्या होता है कि जो रोडोप्सिन है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये आगे ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो इसका इफेक्टर मॉलिक्यूल है जी प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसिन, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सो आगे एक और प्रोटीन आता है विच इज कॉल्ड द इनहिबिटरी प्रोटीन अरेस्टिन। तो ये जो अरेस्टिन होता है ये यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेटेड सी टर्मिनल है इसके साथ इस तरीके से बाइंड कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड द अरेस्टिन। तो जब अरेस्टिन इस तरीके से बाइंड कर जाएगा तो जो रिसेप्टर है, जो रोडोप्सिन है, ये पूरे तरीके से इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर है, जो रोडोप्सिन है, इसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। अब सेकेंडली क्या होता है कि रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग विच आर कॉल्ड दी आरजीएस, दे एक्ट एज अ जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो कि जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करती है, इसे हम बोलते हैं जीटीपेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आरजीएस है इसके पास जीडीपेज एक्टिविटी है, तो ये क्या करेगा कि जो ट्रांसड्यूसिन अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में है, क्योंकि अभी रिसेप्टर जो है इसकी इनहिबिशन इनएक्टिवेशन हुई है, लेकिन ट्रांसड्यूसिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो ये जो ट्रांसड्यूसिन है इसके साथ जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है। तो जो आरजीएस है इसके पास जीटीपेज एक्टिविटी है, तो ये जो इसका जीटीपी है इसको जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्फा सबयूनिट जो है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये दोबारा से यहाँ पे इस सब जो ट्रांसड्यूसिन है इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो ट्रांसड्यूसिन की इनएक्टिवेशन हो जाएगी इस तरीके से। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पाथवे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ दिस विजुअल सिग्नल। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब विजुअल सिग्नल आता है तो साइटोसोल में कैल्शियम एंड सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज हो जाती है।
तो ये जो यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्टिवेट करती है विच आर कॉल्ड दी कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन्स। ये देखते हैं कि कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है ये साइटोसोल में कम है, जो रोड सेल्स के साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये जो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आगे ग्वेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं, और जो ग्वेनिल साइक्लेज है ये रिप्लेनिश करता है, मींस दोबारा से साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है साइटोसोल में। तो इस तरीके से क्या होता है कि अभी जो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन में थी ये दोबारा से रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। नाउ एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो जीपीसीआर के साथ डिफरेंट डिजीज रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहली जो डिजीज है इट इज कॉल्ड द कॉलेरा। पॉजिटिव एजेंट फॉर कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेरा, और इसके पास जो टॉक्सिन होता है इसे हम बोलते हैं एबी टॉक्सिन। एबी टॉक्सिन इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे एक अल्फा चेन होती है विच इज सराउंडेड बाय 5 बीटा चेन्स। सो अल्फा एंड बीटा चेन्स होती हैं, दैट्स व्हाई एबी टॉक्सिन इसको बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉलेरा का टॉक्सिन है ये जीपीसीआर को कैसे हाइपर एक्टिव करता है। यहाँ पे जो है ये स्टमक है, स्टमक के नीचे जो है ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, और ये ल्यूमन है ड्यूडेनम का। नाउ ये जो एक सेल है इसको हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसमें किस तरीके से जो है जो कॉलेरा टॉक्सिन है इस पे किस तरीके से एक्ट करता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो विब्रियो कॉलेरा है इसके पास एक तो एबी टॉक्सिन है जिसमें कि एक अल्फा चेन है और 5 जो है ये बीटा चेन्स होती हैं, तो इसीलिए इनको एबी टॉक्सिन बोला जाता है। सेकेंडली ये रिलीज करता है कुछ न्यूरोमाइनिडेज। जो न्यूरोमाइनिडेज हैं ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स को सेल से रिमूव करते हैं। यहाँ पे दीज आर कॉल्ड दी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर सेल से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये ग्लाइकोकैलिक्स रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे एक चैनल है विच इज कॉल्ड GM1। ये क्या करता है, ये एबी टॉक्सिन को सेल के अंदर ले जाएगा, क्योंकि कोई ग्लाइकोकैलिक्स लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एबी टॉक्सिन सेल के अंदर चला जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एबी टॉक्सिन की अल्फा एंड बीटा चेन्स हैं दोनों सेपरेट हो जाएंगी। जो यहाँ पे ए है इसके पास A1 एंड A2 दो सब यूनिट्स होते हैं। जो इसका A1 सब यूनिट है इसके पास एक एक्टिविटी होती है विच इज कॉल्ड दी ADP राइबोसिलेशन ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसके साथ कि ये एडीपी राइबोस को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे प्रोटीन में। तो ये जो एडीपी राइबोसिलेशन एक्टिविटी है इसके साथ ये क्या करता है, यहाँ पे जो जीपीसीआर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, और जीपीसीआर के साथ स्पेसिफिक जो जी प्रोटीन है जो A1 सब यूनिट है, ये यहाँ पे जो जीपीसीआर का स्पेसिफिक जो मींस इसका जी प्रोटीन है इसका जो अल्फा सब यूनिट है इसको कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जीटीपी की बाउंडिंग हो जाती है इस जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ। तो जब जीटीपी कॉन्टिन्यूसली बाइंडेड फॉर्म में रहेगा तो रिसेप्टर कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता रहेगा और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ती रहेगी। जब साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये प्रोटीन काइनेज एक को एक्टिवेट करेगा। सो यहाँ पे जो पीके है ये सीएफटीआर को एक्टिवेट करता है, इस चैनल को ओपन करता है। सीएफटीआर सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये इसका नाम है। तो इससे क्या होता है कि जो क्लोरीन आयंस हैं ये यहाँ पे ल्यूमन में मूव करते रहते हैं। मींस यहाँ पे ये जो सेल है इसकी हमने अभी देखा, तो यहाँ पे जो सीएफटीआर है ये ओपन हो जाएगा और क्लोरीन आयंस जो है इनकी कंसंट्रेशन इस तरीके से ल्यूमन में इंक्रीज हो जाएगी। तो जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में इंक्रीज हो जाएगी तो इसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं, ड्यू टू दिस क्लोरीन अकम्युलेशन इन ल्यूमन जो ऑस्मोलैरिटी है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो जो वाटर है ये ज्यादा से ज्यादा ल्यूमन में मूव करेगा उस ऑस्मोलैरिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो स्टमक में और इंटेस्टाइन में वाटर बहुत ज्यादा अकमुलेट हो जाएगा। ड्यू टू दिस वाटर अकमुलेशन देयर इज स्वेलिंग इन एब्डोमेन एंड व्हिच कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया। दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of vision and GPCR and its disease. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.